Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So today we are going to start a very new and fresh topic, that is geomorphology. What changes are occurring inside the earth as well as on surface of the earth? What are the causes, what are the forces involved in those changes? For example, a continent has been building. So by what steps, by what forces this continent is building? Mountains are building. So by what processes, by what forces these mountains are building? Another thing is volcanism. We will study volcanism. We will study the phenomena of earthquake. But this earthquake phenomena we have studied in detail in our previous lecture, तो हम थोड़ा सा skip कर देंगे. Then we will study some more forces which are occurring on the surface of the earth. For example, erosion and weathering. So all these comes under the geomorphology part. So as we are going to start a new chapter, let's revise for some time what we have studied in the past lectures. So we started our geography lecture by our something known as orientation class, in which I have given you a brief introduction how to connect things. Then we jump straight to the universe part. How many planets are there in our solar system? How universe has been formed by Big Bang theory, which is widely accepted theory. Then we have studied the formation of stars. कैसे कैसे होता है? Firstly, primary nebulae या nebula, then protostar, main sequence star, red giant, बोलते चाहिए ऐसे, red giant से चंद्रशेखर लिमिट, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या उसके भी सुपरनोवा हो जाता है, तो बाइफर्केशन हो जाता है, हमने किया था या. Then we jump straight to the some introduction of the 9 planets. Then we have studied asteroid belt, we have studied Kuiper belt, then we have studied the parts of sun. क्या क्या थे? कोर है सबसे अंदर, उसके ऊपर कोर से क्या होगा? रेडिएशन इमर्ज होगी, सो रेडिएटिव जोन. रेडिएशन इमर्ज होने के लिए वी रिक्वायर सम सरफेस, सो कन्वेक्शन होगा, तो कन्वेक्टिव जोन. ऐसे याद करने के लिए कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, ठीक है. और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, CRC PCC, तो CRC याद रख लीजिए, PCC याद रख लीजिए. कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, PCC, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना. Understood? Then we jump straight to the formation of atmosphere. There are 3 geological time scales of the formation of our atmosphere. So पहला था primitive atmosphere, mainly composed of simple gases like H2 and helium. Then the degassing phase, the second phase of atmosphere, in which the enormous amount of energy has been released by volcanism and various other factors. So formation of clouds हुआ, then continuous rain हुआ, तो उससे क्या हुआ? All the CO2 get absorbed in the सीज. हमने पहले पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ आए थे सबसे पहले? इन सी. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ था ड्यू टू द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ CO2. दीज एनारोबिक बैक्टीरिया और प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स स्टार्टेड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? O2. सो eventually these oceans get fulfilled with O2 and start releasing these excessive O2 in the atmosphere. So that's why in the third phase we have our present composition of atmosphere, which is mainly nitrogen and oxygen. In the atmosphere part we will again come to discussion of this topic. Then formation पढ़ लिया. Then I have taught you the different periods या different time scales. क्या थी? अगर हम क्रोनोलॉजिकली लगाए तो ईयॉन्स, ईरा, पीरियड, इपोक, तो आपको याद रहनी चाहिए. देन हमने डिफरेंट ईरास पढ़ा. कौन कौन सा है? सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन ईरा, देन पेलियोइक, देन मेसोजोइक एंड देन पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक. अभी किसमें हम? सीनोजोइक में है. तो ये सब हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? Then we come to the various continental building theories. So सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी.
ठीक है, ये सब याद करते रहिए, नहीं तो भूल जाओगे। ऐसा नहीं है कि अब जियोमॉर्फोलॉजी का हम अलग आगे उसका कोई सब्जेक्ट उठाएंगे या टॉपिक उठाएंगे तो हम वापस पूरा रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। ये बस इसी क्लास के लिए करवा रहा हूँ मैं, ताकि आपका क्लियर हो जाए। सो अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी, इट इज़ द फर्स्ट थ्योरी टू बी propounded in that period of time. So we have the core aspects of this continental drift theory, then severely criticized. Then comes the convectional current theory of Arthur Holmes. Then comes the sea floor spreading theory of Harry Hess during the World War II. I have told you the story of World War II. So merging all the important concepts of these three theory, the present theory which is most acceptable, the plate tectonic theory, has been emerged. Then in between we have studied some earthquake phenomena, पूरा हमने डिटेलिंग में जाना था। which wave is faster? Of course S wave नहीं, P waves is faster, primary waves. So destructive waves कौन सी है? That is L waves, surface waves. So surface waves are most destructive. The first wave that we perceive before an earthquake is P wave. The shadow zone of P wave is larger than the shadow zone of S wave. It is correct or not? Shadow zone of P wave is larger than the shadow zone of S wave. It is correct or not? It is absolutely abrupt बोल रहा हूँ, absurd statement, false statement. Why? Because P wave shadow zone is much less. कहाँ से कहाँ तक था? 105 to 145. तो 105 से 145 डिग्री एंगल फ्रॉम द एपीसेंटर, एपिक चीज़ें कहाँ, सॉरी, फ्रॉम द हाइपोसेंटर। एपिक चीज़ें कहाँ होती है? एपिक चीज़ें कौन करता है? एवेंजर्स करते हैं। एवेंजर्स की तरह ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। सो एपीसेंटर इज ऑन सर्फेस, हाइपोसेंटर और फोकस इज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया था ये सब। Then 105 to 145 degree angle, we don't have any of the two waves, P wave or S wave. But after 145 degree, we perceive the only P wave. Why? Because P wave is like a sound wave, and sound wave travels along solid, liquid and gas, all the three mediums. Then we have studied the P wave, S wave characteristics, हमने सारी रटी थी। उसके बाद हमने earthquake prone zone की बात की थी, कहाँ कहाँ है। Then we jump to the interior of the earth, as we have started the plate tectonic theory. So beforehand we have to study the interior of the earth. So the traditional view, CLC mind knife, and the modern view, that is crust, मेंटल एंड कोर। सो हमने पढ़ा था, उसमें लिथोस्फीयर आती है एक टर्म जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। सो लिथोस्फेरिक प्लेट कंप्राइजेज ऑफ the crust part and upper part of upper mantle. So what is upper part of upper mantle? That is asthenosphere. So that's why the lithospheric plate or cluster, or simply the plate, denotes the crustal part of earth as well as upper part of upper mantle, that is asthenosphere. Asthenosphere is in jelly state. Why it is in jelly state? क्योंकि प्रेशर इतना कोप अप या लेवल अप नहीं कर पाता जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड वाई टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर गोइंग इनसाइड द अर्थ? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। सो ड्यू टू द बर्निंग ऑफ दिस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स देयर इज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दैट हैज बीन जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बट द प्रेशर कांट कीप अप विद द increasing temperature. That's why asthenosphere is in jelly state and not in liquid state. Understood? And this asthenosphere is the main cause of all the movements happening on the surface of the earth. किसके लिए कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। सो बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शनल सेल्स, जो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बर्न हो रहे हैं, सो दे आर फॉर्मिंग द कन्वेक्शनल सेल्स। सो जो भी अपवर्ड या असेंडिंग लिम्स होती हैं वो मैग्मा को ऊपर लेके जाएंगी एंड देन इट विल डाइवर्ज इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, अगेन दे विल कूल ऑफ एंड कम डाउन एंड अगेन द प्रोसेस और द साइकिल विल रीस्टार्ट। मैंने आपको अच्छे से डायग्राम फॉर्म में बताया था। देन आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस प्लेट्स वी जम्प टू द मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। देन आई हैव टोल्ड यू द थ्री टाइप्स विच आर दीज: द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, the divergent plate boundary, as well as the transform. Now there is sub-categorization of these three also. What is it? In convergent. Acha, what is another name of convergent? I have told you, please focus on the area between the two profiles. So convergent में
अगर मैं मान लीजिए मान रहा हूँ, कोई भी मान रहा हूँ, ओशन मान रहा हूँ या कंटिनेंटल मान रहा हूँ, so two continents are colliding, so we have to focus on the area between these two continental plates, so it is constructing or destructing this area. As the two continental plates are converging, they will destruct the middle area, so our focus is this middle area. So that's why convergent plate boundaries is also called as destructive plate boundaries, whereas in divergent plate boundaries, two continental plates are going farther away from each other, so there is some formation in between the middle portion. So that's why divergent plate boundary is also known as कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री. एंड वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में तो क्या हो रहा है, बस प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है. द मेजर एग्जांपल इज कैलिफोर्निया फॉल्ट. तो ये सब हमने पढ़ा था. कन्वर्जेंट में कन्वर्जेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस. Mostly one plate is totally oceanic, which is Pacific plate. The largely continental plate is Eurasian plate. और सारी क्या है, मिक्स है. Then OC, the most common type of convergence हमने पढ़ा. इसमें क्या होता है, सिंपली है यहाँ से ये डायग्राम्स आप जल्दी जल्दी बनाना सीख जाएंगे थोड़ी सी देर में. कन्वर्जेंट है तो डिसेंडिंग लिम्स. सो दिस इज कन्वर्जिंग ओशनिक प्लेट एज वेल एज कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो जब भी होता है तो सबसे पहले तो कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स है ना, कॉर्डिलेराज मिलते हैं, पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन्स. देन यहाँ से ज़्यादा अंदर नहीं गया ये प्लेट, सो दिस विल स्टार्ट liquidifying. Why? Because of high temperature. So as there is liquidification of this material as there is liquidification of the material of this plate, so molten magma will rise, and here we will have volcanoes. Another prominent characteristics is trenches or Benioff zone or zone of subduction. ठीक है. Then we have earthquake, we have tsunamis. So all these are the characteristics of ocean continental convergence. Then the second thing we have studied is oceanic. So it is very simple. There are two plates of oceanic in nature. आप बना लीजिए ना convectional cells, मैंने बनवाए पहले. And here we will find this plate will start liquidifying, and there are some volcanic originating islands. So island arcs and festoons are the prime example of this ocean convergence, and we have studied various examples like Philippines, like Indonesian arc, like Japanese arc, है ना. So ये सब हमने oceanic में पढ़े थे. And the last but not the least, which is very prominent regarding our Himalayas, is continental, in which two continental plates will abduct and not subduct, will abduct upon one another, thus forming doubling of earth crust. So यहाँ हमने क्या बोला था, 70 किलोमीटर तक का क्रस्ट मिल जाता है हमें अंडर द हिमालयाज. ये सब पढ़ा था हमने. So that's why there is no volcanoes in Himalayas, because it has been formed due to doubling or abduction of Earth's crust in the convergent plate boundaries. But earthquake होंगे, yes, there will be earthquake, and there will be formation of big mountains. So these are the convergent plate boundary. Regarding the divergent plate boundary, start from the continental divergence. यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मैंने बोला था आपको. सो दिस इज कॉन्टिनेंट. कलर्स पे ध्यान मत दीजिए, मैंने पिछले क्लासेस में अच्छे से करवा रखा है. दिस इज अ रिवीजन क्लास. कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, इसमें क्या होगा, क्रैक हैज़ बीन डेवलप्ड,
there will be tensional force. अगर tensional force है, so this crack will starts elongating due to rain. Elongated sea face will be there. This particular narrow sea will gets elongated in near time scale. So this is elongated sea phase. Then at the last, this continent divergence will turn into ocean divergence. As there is divergence, so there is some magma. So here from the asthenosphere, magma will come out. So it form the ridges over both side of the plates. So it is known as oceanic ridges, mid oceanic ridges. So hence we have mid oceanic ridges. अगर यही mid oceanic ridges, और क्या होगा इसमें, फिशर रिएक्शन होगा, not reaction but volcanism, फिशर volcanism होगा. What is the difference between this volcanism and this volcanism? It forms larger mountains. कैसे? Because this magma is destructive in nature. In the today's class in geomorphology, we will study volcanism. In volcanism, we will study the basic difference between an acidic magma and a basic magma. So here we have acidic magma. Understood? So here we have acidic magma and here we have basic magma. So acidic magma forms the explosive mountain. अगर ये explosive है, जो वल्केनिज्म हो रहा है, तो धीरे धीरे माउंटेन बिल्डिंग होता रहेगा. ठीक है, कितना होगा, कैसे होगा, अभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे. दिस इज बेसिक मैग्मा. बेसिक मैग्मा इज मोर लिक्विड इन नेचर, सो इट टेंड्स टू स्प्रेड आउट व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो दैट्स व्हाई वी हैव फिशर वोल्केनिज्म. और फिशर वोल्केनिज्म से बेसिकली क्या बनता है, प्लाटूज. So various kind of plateau can be formed as well as islands can be formed. The prominent example island का क्या है, Greenland and Iceland. मैंने बताया था Iceland बना हुआ है ग्रेनाइट से, and granite undergone metamorphism changes its color to green, so that's why Greenland. So ये सब हमने पढ़ाया. उसके बाद ट्रांसफॉर्म में आ गया. ट्रांसफॉर्म में बेसिक वही चीज़ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीवियस क्लासेस. होप यू अंडरस्टैंड. Understood the previous classes in a crystal clear format. So today we will be going to study the geomorphology.
So this is the whole syllabus of our geomorphology. Please draw this table in your notebooks. So we will study about the movements that are happening on Earth as well as inside Earth. So on Earth there can be the movements due to exogenic forces, and in the interior of the Earth we will study the endogenic forces or endogenic forces. Now basically, predominantly one form of energy is causing these two types of forces, that is sun's energy. So sun's energy is the base of these two kind of forces. Endo means interior of the Earth, exo means on the surface of the Earth or outside the Earth's surface. एक्सोजेनेटिक में बहुत शॉर्ट है, इरोजन एंड वेदरिंग एंड मास मूवमेंट्स. In the erosion we will study different types of agents which is purely rectification in nature. एक एक करके जीसी लेआउट में भी अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं. विंड इरोजन, देन ग्लेशियल इरोजन, देन वाटर इरोजन. सो ये सब हम पढ़ने वाले हैं. इरोजन इज एन एक्स सिटू प्रोसेस. क्या होता है एक्स सिटू? इट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ पार्टिकल्स एट one part as well as the traveling of these eroded particle to the another point. So that means ex situ. Weathering is kind of in situ process. We will go in detail to every and each of the term. Then we have the endogenic forces, in which it has been further bifurcated into catastrophic as well as diastrophic forces. Now catastrophic forces, as if you have seen various number of Hollywood movies, so basically the tsunami type of movies or earthquake type of movies, there is a huge pronunciation of this catastrophic term. So it means that is abrupt in nature. ठीक है, कोई टाइम नहीं मिला उसका रिएक्शन करने के लिए हमें. सो इट इज़ वेरी अब्रप्ट इन नेचर. सो अब्रप्ट कैसी होती हैं चीज़ें? वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, ये बिना बताए आ जाती है. विद इन 1 hour, विद इन हाफ एन आवर ऐसे आती हैं. वल्केनिज्म का तो कोई टाइम ही नहीं है. So we will study volcanism and earthquake. The earthquake part we have completed in our previous lectures. Then we have diastrophic. Diastrophic is further bifurcated into two: orogenic, which is known as mountain building. Orogenic means mountain building forces. Epirogenic means continental building forces. So orogenic we will study folding and faulting. These two types of things we will study in orogenic forces, and in the continental building or epirogenic forces we will study the emergence and submergence of land. ठीक है, तो सबमर्जेंस कौन सा है? इंडिया में अगर इंडिया टाइप में बात करें तो द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज सबमर्ज्ड. वेस्ट कोस्ट का भी बॉटम पोर्शन, ठीक है, केरला वाला पोर्शन इज अ सबमर्ज्ड, और सारे हैं इमर्जेंस कोस्ट. Understood? So let's start with folding and faulting of orogenic forces. Then we will jump to the volcanism. So पहले diastrophic का ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, कैटास्ट्रॉफिक का volcanism कंप्लीट कर लेते हैं. earthquake has been completed. So ये टेबल बना लीजिए अब. So in folding, what happens due to the interior forces of the earth? A flat surface this is a surface. So due to interior forces of the earth, this becomes upwrapped or downwrapped. Upwrapped and downwrapped. So due to this forces, and if there is no development of crack in this type of folding,
इट मीन्स इट विल जनरली हैपन इन सम इलास्टिक रॉक्स. इलास्टिक में मतलब ऐसा नहीं कि पूरी रबर टाइप हो जाएंगे, बट इन कंपेरिजन टू द हार्ड रॉक्स these type of rocks are generally elastic. That's why they are undergoing the folding process. So due to the exterior forces or exterior forces in the interior of the earth, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस याद है ना. So in the interior of the earth there are some exterior forces applied to the layer of rocks. The resultant is the upwrapping and downwrapping of rocks, thus resulting into anticlinal mountains. In geography, wherever you will see anticlinal, it means mountain, and synclinal, rift valley or simply valley. So wherever you will come across the term syncline, it means valley, denoting valley. So this is folding. Now there can be various type of folding. सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ फोल्डिंग. देख लीजिए, बहुत ही आसान है. सिमेट्रिकल, बोथ द आर्म्स ऑफ द फोल्डिंग आर सिमेट्रिक इन नेचर. देन asymmetrical, one arm is shorter than another in folding. Then monoclinal, only one arm has been undergone folding. Isoclinal, both arm has been undergone folding. Then recumbent, in recumbent a particular crack has been developed in this isoclinar folding. So that is recumbent or overthrust folding. Overthrust भी बोलते हैं इसे. Overthrust folding. And the last but not the least, the favorite of UPSC, NAP या NAPE बोल सकते हैं, NAPPE, NAPE. In this crack that has been developed, now the interior forces are such huge forces that they will diverge both the arms of this recumbent. और this particular type of folding is very prominent in Himalayas. ठीक है. अगर मैं आपको इसका रियल एग्जांपल दूँ तो ये कैसे होता है, देखिए. मान लीजिए ये हमारे पास हिमालयाज है, ठीक है. ये हमारे पास हिमालयाज है. सो इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस वेयर वी कैन सी दिस NAPE, हियर you will find the terrain or soil of the crust is similar or same, but there is particular instance where the soil texture or the soil origin is completely different from other, and this particular soil origin can be hundreds of kilometers away, found in this in very huge quantity. But how this particular thing is available here? So that is because of this NAPE. ये पूरा यहाँ है, बट इसी के नीचे जाके ये यहाँ से ऊपर निकल रहा है. So this particular kind of soil will have similar characteristics of this particular arm. So this is very prominent example in Himalayas. So this is all about folding. Absorb this.
नेक्स्ट एंडोजेनेटिक फोर्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, ओरोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक में ओरोजेनिक वाली कैटेगरी पढ़ रहे हैं इन द डायस्ट्रॉफिज्म। Faulting. Now what is the main difference between folding and faulting? Faulting means there is creation of a particular crack along the lines of zone of weakness, which is generally in the layman language it is termed as cracks. So folding is predominantly or generally happen because of tensional forces. Now what are tensional forces? ये कोई भी ब्लॉक बैठा है, we are applying tensional force. Compressional force is totally opposite of this. So this is tensional force. So generally faulting happens due to tensional force. Tensional force has been applied to this plate. As we have applied tensional force to this particular plate along the lines of weakness, that is cracks, we will see the displacement movement. So due to this displacement movement, a particular portion of the crust will subduct, hence forming the graben, or it can be known as rift valley or graben, and these block mountains are known as host. It means in geography term, wherever you will encounter the term host, it means block mountains, and the phenomena involved is faulting. And another term is graben, Graben. Wherever you will encounter the term graben, it means rift valley or submergence, not submergence because sea is involved, it means subduction of some land. ठीक है, sea involved नहीं है इधर कहीं. So this is the two terms host and graben in faulting. Now the cracks has been developed because of this tensional force. So these are kind of hard rocks, because if they are soft rocks or elastic rocks, then folding would have occurred. Now this is the fault. Now another term I have told you, generally the faulting occurs due to the tensional forces, so it is a general. Now there is another thing which is reverse fault. So compressional forces, so what will be the resultant, जो डायग्राम हमने पहले बनाया था. वापस से वही है, होस्ट, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली और ग्रेवन. अंडरस्टूड. द एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस इज विंध्यास, सतपुरा, नर्मदा, तापी combination of system. I have told you that when the Indian peninsula started drifting towards the Eurasian plate, so there are two arms, the अरावली आर्म एज वेल एज, कौन सी आर्म थी, मेघालय आर्म थी ना कोई, हाँ, तो मेघालय आर्म थी जो भी थी. तो जैसे जैसे ऊपर गया, सो इट हिट और इम्पैक्टेड हार्ड ऑन द यूरेशियन प्लेट. अगर पूरी प्लेट अगर यूरेशियन प्लेट में हिट बैक हो रही है, तो जो नीचे का वेस्ट कोस्ट का रीजन होगा वो भी तेज़ी से ऊपर आ रहा होगा, है ना. बट ऊपर की लेयर रुक चुकी है, क्यों, क्योंकि यूरेशियन प्लेट से इम्पैक्ट हो चुका है. बट नीचे की तो उसी इंटेंसिटी से थोड़ी देर आगे जाएगी,
है ना। सो दैट्स वाई इट इज़ ड्यू टू द रिवर्स फॉल्ट। कंप्रेक्शनल फोर्सेज है, नीचे से वेस्ट कोस्ट ऊपर जा रही है, यूरेशियन प्लेट धक्का खा चुकी है तो वो भी वहाँ से वापस कंप्रेक्शनल फोर्स अटेन कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ रिवर्स फॉल्ट। क्या एग्जांपल हमारा, जो नर्मदा बह रही है ना रिफ्ट वैली में, तापी बह रही है रिफ्ट वैली में बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा, तो वो है। और अब निकाल लीजिए अपना एटलस। निकाल लिया एटलस, निकाल लीजिए। तब तक मैं थोड़ी सी इसकी चीज़ें बता देता हूँ। दिस इज फॉल्ट, जनरल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, एक होते हैं स्टेप फॉल्ट, so Deccan traps. Where are Deccan traps? The eastern portion of वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र कर्नाटका, इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न पोर्शन, उनमें वी विल एनकाउंटर द डेक्कन ट्रैप्स। सो इसलिए उनको डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। वो ट्रैप की तरह नीचे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द रिवर्स फॉल्ट। ये वाली रॉक डिस्प्लेस नहीं करेगी, उससे जो अगली सब्सिक्वेंट रॉक है वो थोड़ी डिस्प्लेस करेगी, सब्सिक्वेंट रॉक मोर डिस्प्लेसमेंट। सो दीज आर काइंड ऑफ स्टेप्स, दैट्स वाई डेक्कन स्टेप्स और डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। निकाल लिया अपना एटलस। मेरे पास ऑक्सफोर्ड का है, आप देख लीजिए आपके पास वो ब्लैक करके कुछ है ना, ब्लैक स्वान करके, उसका है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ज़्यादा अलग नहीं होता। देखिए पेज नंबर 81 पे आपको दिख रहा होगा बैकाल लेक, बैकाल लेक देखिए। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्टिंग। सो जितने भी इलोंगेटेड लेक्स हैं ना, वो किसके एग्जांपल है? ड्यू टू रिफ्टिंग। बैकाल हो गया रशिया में, एक लेक बलखाश देखिए कजाकिस्तान में, देख लिया, वो भी रिफ्टिंग की दुआ है। देन थोड़ी सी ऐसी चीज़ें, रैंडम चीज़ें देखते रहते हैं एटलास में, क्योंकि ज्योग्राफी पूरा एटलास का ही गेम है। एराल सी देखिए, उसमें दो रिवर जा रही है, अमू दरिया एंड सिर दरिया। कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे देख लीजिए। अराल सी इज़ एंटायरली इन कजाकिस्तान, ट्रू और फॉल्स। सो छोटी सी स्टेटमेंट आ सकती है, अराल सी इज़ बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, लिख लीजिए। अफ़गानिस्तान बड़ा न्यूज़ में है, अफ़गानिस्तान देख लीजिए, इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ताजिकिस्तान उसके ऊपर है, डेट इज़ टू लैंडलॉक्ड। किर्गिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, कजाकिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, मंगोलिया भी लैंडलॉक्ड है, सब देख लीजिए। तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक्ड है। थोड़ा सा मिडल ईस्ट की तरफ आ जाते हैं, जहाँ ये सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, ये सब है। तो जॉर्डन कंट्री देखिए, ये भी थोड़ा न्यूज़ में था। जॉर्डन कंट्री, एंड दिस इज़ द प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन, डजेंट ओपन ऑन द मेडिटेरेनियन सी साइड, है ना। थोड़ा सा अगर बड़ा मैप देखें, मैं वर्ल्ड मैप देख रहा हूँ, मिडल ईस्ट का मैप लगा लीजिए अगर आपके जल्दी लग जाए तो। देखिए जॉर्डन जो कंट्री है वो मेडिटेरेनियन सी में इट विल नॉट ओपन, बट वन ऑफ द पोर्ट सिटी गल्फ ऑफ अकाबा इट विल ओपन इन द रेड सी। सो जॉर्डन इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, इट विल ओपन इन द रेड सी। इज़राइल फिर है आपके पास, इज़राइल, अच्छा अगर इज़राइल की बात आ रही है तो नेगेव डेजर्ट मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ फेमस डेजर्ट, नेगेव डेजर्ट, NEGEV, नेगेव डेजर्ट है। देन अगर गोलन हाइट्स की बात आती है, इज़राइल फेमस फॉर गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स की बात आती है तो गोलन हाइट्स इज़ इन बिटवीन इज़राइल एंड सीरिया, ये भी लिख लीजिए। देन
देन डेड सी की बात आ जाती है इजराइल में ही। तो डेड सी आप देख पा रहे हैं डेड सी के बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है? सी ऑफ लॉट, बुहारियात लेक, बिरकिट लुट लेक। तो ये सब इफ़ यू टाइप इन द एनसाइक्लोपीडिया और विकीपीडिया यू विल फाइंड दीज ऑल काइंड्स ऑफ नेम्स, और ये सब हमको याद होने चाहिए, ठीक है। देन इस यहाँ एक डेड सी है, तो डेड सी क्या हाईएस्ट सलाइन लेक है इन द वर्ल्ड? नो। एक लेक वैन है या वैन गोलू बोलते हैं टर्की में, डेट इज़ द हाईएस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड एंड एट सेकेंड नंबर इट इज़ डेड सी, ठीक है। सो डेड सी को क्या क्या बोलते हैं? सी ऑफ लॉट, बुहारियात या बिरकेट लुट लेक। नेगेव डेजर्ट बता दिया मैंने, जॉर्डन, जो जॉर्डन कंट्री है वो मैंने बता दिया आपको मेडिटेरेनियन सी में ओपन नहीं होती है। लेबनान देख लीजिए, यहाँ पिछले साल या पिछले साल जो फर्टिलाइज़र के कारण एक ब्लास्ट हुआ था, तो देख लीजिए कहाँ है लेबनान, आधे लोगों को पता ही नहीं होता, जिसकी राजधानी बेरूत है। फिर जो एक बहुत बड़ी रिफ्ट वैली है वो देख लीजिए, जो कि हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ी थी, डेट इज़ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। 93 पेज पे हूँ मैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली देख लीजिए, इसमें तो बहुत कुछ है जानने के लिए। पहले तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देख लीजिए, 4 कंट्रीज़ आती हैं, कौन कौन सी? एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया एंड इथोपिया। इथोपिया का आप देखेंगे इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इथोपिया इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज़ लैंडलॉक्ड, लगता नहीं है पर है। तो कौन कौन सी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? 3-4 हैं, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया एंड इथोपिया। ये आपको याद होना चाहिए। देन एक अफ्रीका का फेमस माउंटेन है किलिमंजारो, किधर है वो? तंजानिया में है। तंजानिया की राजधानी का है डोडोमा। जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, विक्टोरिया लेक इज़ पार्ट ऑफ इट इज़ करेक्ट और नॉट? सो इट इज़ इनकरेक्ट। लेक विक्टोरिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अगर आप ये फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका देखेंगे तो इसमें रेड कलर की लाइन्स दिखा रखी हैं फॉर द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो इसमें बहुत सारी लेक्स आ जाती हैं। कुछ लेक देखेंगे तो आप, ये है टंगनाइका, देन लेक न्यासा है, न्यासा को मालावी भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना, न्यासा को ही मालावी कहते हैं। देन एक लेक टिटिका का है, बताना कहाँ है ज़रा, अगर आपको याद है तो। वो कहाँ है? पेरू और बोलिविया के बीच में है लेक टिटिका का, तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन देशों से पास होती है इन द साउथ अमेरिका? ट्रॉपिक ऑफ इन हाउ मैनी कंट्रीज डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका? कितनी? 0, किसी से नहीं होती है। सो ये सब है, थोड़ा थोड़ा हम मैप भी देखते रहेंगे। एक लेक बलखाश है, किर्गिस्तान में है वो भी देख लीजिए एक बार। लेक बलखाश इन किर्गिस्तान, तो एंटायरली इन किर्गिस्तान में। आगे जाके हम थोड़ा माउंटेन्स पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी सी और डेप्थ में चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे। In Europe, we have 2 rivers, Rhine and Rhone. Quite confusing rivers. So Rhine drains in North Sea, ठीक है, and it flows in the Rift Valley between the Black Forest as well as Vosges mountain. Black Forest is in Germany and Vosges is in France. तो ये आपको याद होना चाहिए। Rhone will drain into Mediterranean Sea and Rhone is in relation with Mistral, ठीक है, MISTRAL, मिस्ट्राल विंड, और ये हम पढ़ेंगे विंड्स में, मिस्ट्राल विंड, ठीक है, तो ये याद रखना। राइन इज़ फॉर रिफ्ट वैली, दोनों में आई है। राइन रिफ्ट वैली कहाँ जाएगी? ऊपर नॉर्थ सी में गिरेगी। रोन मेडिटेरियन सी में जाएगी, मिस्ट्राल रिलेशन है।
एग्जाम्पल ऑफ फॉल्टिंग सिस्टम इन इंडिया मैंने आपको बता दिया है। नीचे वाली कौन सी रिवर है? ऊपर वाली नर्मदा। ऊपर वाले कौन से माउंटेन है? विंध्यास, ब्लॉक माउंटेन्स अभी पढ़ा है हमने। नीचे वाले सतपुरा। टू मोर रिवर Swan and Damodar also have their origins from the nearby area of this विंध्या रेंजेस। सो अगर आप थोड़ा सा देखोगे वापस अपना एटलस उठा के, एटलस का बहुत काम आने वाला है अब सारी क्लासेस में। तो आप देख सकते हैं ये जो सतपुरा रेंज है इसी के नीचे आपको लिखेगा ग्वालीगढ़ हिल्स, महादेव हिल्स एंड मैकाल हिल्स। सो दिस नर्मदा originates from मैकाल हिल्स एज वेल एज दिस सोन रिवर ऑल्सो originates from मैकाल रेंज। याद कैसे करना है? धीरे धीरे याद होगा, बट इफ़ यू आर अ चेस फैन आपको पता है इन द चेस वी हैव ग्रैंड मास्टर्स GM। सो अंडर सतपुरा रेंज वी हैव GM, दैट इज ग्वालीगढ़ एज वेल एज महादेव, एंड उसी के आगे मैकाल है। सो GM² या GMM, ग्वालीगढ़ महादेव मैकाल रेंज। तापी हैज़ इज ओरिजिन फ्रॉम द मुल्ताई रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश में विंध्यास मैकाल रेंज जो है मध्य प्रदेश, एंड तापी इज फ्रॉम मुल्ताई रीजन। तो आपको यही बताना था थोड़ा सा। ये क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। ये क्या है? गल्फ ऑफ खंबात। दामोदर जॉइंस विच रिवर? हुगली भागीरथी, या सिंपली हुगली, विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, नॉट अ ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये गंगा रिवर है, इसमें ये सारी नदियाँ ज्वाइन हो रही हैं। These are tributary, T1, T2, T3, T4. They are tributing their waters to the main river. But if the main river bifurcates while flowing its course, it means it is a distributary. So one of the distributaries is Hooghly Bhagirathi or Hooghly Ganga की, ठीक है। We will study the Himalayan river system and peninsular river system in details. Son is the tributary of Ganga. से थोड़े से देखते रहना। फिर वी हैव बाबा बुदान हिल्स हेयर इन कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है, फिर तमिलनाडु में जावड़ी है ना। हेयर वी हैव गिर रेंजेस, यहाँ गिर है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, मज़ा आएगा पढ़ते पढ़ते। ज्योग्राफी रटने में मज़ा आता है। देयर आर वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स इन विच वी हैव और वी गेन इंटरेस्ट इन रेक्टिफिकेशन। ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स। Because we can find example in real world, we can go on internet and we can find live examples in front of our eyes. So that's why geography is very interesting. Another topic, जल्दी तो नहीं हो रहा आज, कुछ ज़्यादा ही कर लो, आप धीरे करके स्टार्ट कर देना। 0.75 पे देख लेना। Yes, the spelling is correct. Volcanism, VULCANISM. Volcanism is a whole process. Volcano is part of the process of volcanism.
So what is the process of volcanism? Interior of the earth has huge amount of heat, production of heat. Why? Radioactive materials. This huge amount of heat is carried towards the earth's crust by convectional currents. So these convectional currents take the enormous amount of heat to the earth's crust, and from a small opening or vent, VENT, from a vent, this huge energy is given out or thrown out in the earth's atmosphere or on the earth's surface. So all this process, the burning of radioactive materials and turning into magma, the rising of magma through the convectional currents, and in the end blowing out from the small vent or small opening on the earth's crust, forming different types of formations. The whole process is known as volcanism. So last में क्या है? Yes, the resultant will be mountain which is known as volcano. So volcano is the part of volcanism. We have the two opposite features. One is intrusive and second is extrusive. Intrusive means interior of the earth. Endo means interior of the earth. Extrusive means outside the earth. It means on the crust part. ठीक है. Exo means बाहर. ठीक है. तो extrusive, exo it means outer. Interior, endo it means interior. Intrusive, interior. So पहले मैग्मा के टाइप्स पढ़ लेते हैं. ये कुछ रटा नहीं है, आपको भी याद हो जाएगा. एसिडिक मैग्मा comes from just beneath the crust. The magma which is coming from just beneath the crust in comparison to the magma at the lower floor of the interior of the earth, दोनों का comparison करें अगर, so this magma will be less hotter. ये तो आप मान रहे हो अगर कंपैरिजन करें. so this magma will be less hotter. Another thing which I have taught in the previous class is the upper portion of the crust is rich in सीमा, सियाल या सीमा कुछ भी लगा लीजिए, sulfur. so this magma will be rich in sulfur as it is coming from, in comparison, सब चीज़ें in comparison है, as it is coming from just beneath the earth's crust, so it will be highly viscous. Viscous means हनी देखा है, हनी is more viscous than water. The ability of water to flow is greater than the ability of honey, so that's mean honey is more viscous than water. Acidic magma will be more viscous. It will be less hot. अगर less hot है so it will be light in color. Understood? अगर less hot है so after coming or emerging from the earth's crust it will solidify faster. It means it will not spread into layers but it will solidify faster, forming some mountain like structures. It will be explosive in nature. Why? Because it is highly viscous. So these are all the characteristics of the acidic magma. और ये कहाँ से आते हैं मैंने बताया था, और अब रिलेट कीजिए इसको कहाँ से, इन द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. आई हैव टोल्ड यू दैट दीज प्लेट्स गो एट द surface of the astrosphere and start liquidifying. So that's why in the ocean continent convergence we have volcanic origin of mountains which are explosive in nature. है ना, मैंने आपको इटली के बताया था, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, देन वोल्केनो.
और एक और था, नाम भूल गया, नहीं, एटना, माउंट एटना. सो दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, बेसिक मत बोलना, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक माउंटेन्स. नाउ बेसिक, माफिक और रिच इन आयरन. सब इसका अपोजिट है, लाइट इन कलर, डार्क इन कलर. वाई? बिकॉज हाईली हॉट. विस्कस, लिक्विड इन नेचर मोर. नॉट सो लिक्विड, लिक्विड इन नेचर. सॉलिडिफाई फास्ट, सॉलिडिफाई वेरी स्लोली. सो इट विल डाइवर्ज इनटू लेयर्स. तो क्या बनता है? प्लाटूज बनेंगे. इससे बन पाएंगे? इससे नहीं. इससे एक्सप्लोजिव माउंटेन्स बनेंगे, इससे बनेंगे सारे प्लाटूज. एक्सप्लोजिव, नॉट एक्सप्लोजिव. ग्रेनाइट, बसाल्ट. सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मैग्मा. आप अब थोड़ा सा इसको रिलेट कर लेना खुद से ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से. Now we will study the intrusive forms as well as extrusive forms. So in the intrusive forms, आपने जिसे लियोंग में बहुत अच्छा डायग्राम देख ही रखा है. थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं वही डायग्राम. नहाते कैसे हैं? बाथ टब में, बैथोलिथ. The enormous amount of magma that is present at the upper part of asthenosphere is known as batholith. Here a tube will emerge which go straight. This is a earthquake. So the vertical portion of the molten magma is always, or the inclined portion is known as dike. ठीक है. So this is the इंट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ वल्केनिज्म. याद कैसे करेंगे? यही तो मेन चीज़ है. देख तो आप डायग्राम, इसीलिए हम में भी लेंगे. बात कहाँ करते हैं? बेदिंग टब में. बैथोलिथ हो गया. लैकोलिथ में डबल सी आता है. लैकोलिथ में डबल सी आता है. अगर सी को आप इन्वर्ट कर दें तो ये वाला शेप बन जाएगा एंड वी हैव लैकोलिथ. ऐसे याद कर लेना. फैकोलिथ, पी, पेयर्स एंड लेंसेज. ये दो टर्म से आप याद करेंगे. फैकोलिथ कैसे है? इसका डिज़ाइन ऐसे है, देखना जीसीलियम में. इन पेयर्स एंड काइंड ऑफ लेंसेज फॉर्म हो रही है. सो इससे आप याद कर लेना, पी फॉर पेयर्स, पी फॉर फैकोलिथ. ठीक है. सॉसर टाइप का एक ही बचा आपके पास, डेट इज लोपोलिथ. वो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. द हॉरिजॉन्टल पोर्शन और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा फॉर्म्स सिल, SILL, एंड द वर्टिकल और
somewhat angular position of the molten magma is known as dike. देखिए एक डाइक बना रहा है प्लाटू, और यही डाइक दूसरी जगह बना सकता है हमारा एक्सप्लोजिव माउंटेन्स। तो ये सब आप याद रखना। सो इंट्रूसिव फॉर्म हमने एक ही चीज़ एक ही बार में ख़त्म कर दिया। Now we have extrusive volcanoes. So what comes out from the opening vent of a volcano? हम सबको ही पता है क्या क्या है ये। Water vapor, dust and gases, which comprises of approximately 60% of the total things that I have mentioned here. These things comes out of vent of a volcano. Water vapor, dust, etc. Some other gases like SOx, NOx, CO2, carbon monoxide, CO. So such kind of gases comes out from the vent of a volcano. The second is the magma, which is the main part, and with these the various gases. And third is pyroclastic materials. मान लीजिए कुछ burning rocks होंगे, so these are comprises of pyroclastic materials. Burning rocks, big stones. So at the time of explosion, these pyroclastic materials travels huge distance and causing huge destructions. So now we will study the various forms of extrusive volcanoes. So ये तीनों चीज़ें निकलती हैं। याद हो रहा है ना, कॉमन सेंस है सारी, ठीक है ना। ऐसा नहीं आपको कोई रटने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार जाके यूट्यूब पे इफ़ यू सर्च द इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो, तो आपको तीनों चीज़ें साथ ही दिख जाती है। या ह्यूज बबल ऑफ गैस विल गो अप इन द एयर, सबसे पहले आपको ये दिखेगा। उसी से जस्ट 2 सेकंड पहले आपको मैग्मा थोड़ा दिखेगा, और उसके गैस इरप्शन होने के बाद एकदम लास्ट में मैग्मा दिखेगा, ठीक है। तो मैग्मा हो गया, वेरियस गैसेज हो गया, और इफ़ इट इज़ अ एक्सप्लोजिव वोल्केनो तो सबसे पहले एक्सप्लोजन होगी, और एक्सप्लोजन से यू विल सी पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्केनोज, ऐश, सिंडर, so these are various kind of volcano. पैरासिटिक कोन भी एक, पैरासिटिक कोन। एश सिंडर इज काइंड ऑफ फेक वोल्केनो। क्या होगा, ये वोल्केनो इरप्ट होगा, दिस वोल्केनो विल इरप्ट एंड द गैसेज विल फॉर्म समवट बाउंड्री ऑफ वोल्केनो, विच इन द नियर फ्यूचर दिस गैस विल वेपोराइज, और आपको एक छोटा सा ही माउंटेन दिखेगा। सो दीज आर एश सिंडर वोल्केनोज और स्यूडो वोल्केनोज और फेक वोल्केनोज। द मोस्ट important is stratovolcanoes. These stratovolcanoes
This is a main volcano. Now pyroclastic material will emerge out, and suppose the explosion is not that explosive, so these pyroclastic material will solidify here, or this magma will solidify here. Then the pyroclastic material will solidify here. Then in the near future time scale, again this will erupt. Then magma will solidify. Then pyroclastic material will solidify. So basically the height of this volcano will start increasing due to subsequent eruptions. So this kind of volcano is known as stratovolcano. समझ आई आपको बात? इसी में बता देता हूँ और भी. Parasitic cone. In this particular volcano, stratovolcano, we have a singular vent. But if the enormous, or there is a huge pressure of this magma to come out, so magma will take on another direction and it will emerge out of another venting, and hence we have multiple volcanoes on a single volcano. ठीक है. सो ऐसे ऐसे वी हैव मल्टीपल कोन्स एंड मल्टीपल volcanoes on a single volcano. So the famous example is the Mount Shasta in North America. So this is a very good example, and this is the parasitic cone and the various example of stratovolcano. अपनी एटलस खोल लीजिए और स्टार्ट करिए देखना जो जो मैं नाम बोल रहा हूँ. सो यू विल सी द माउंट Aconcagua पेरू चिली बॉर्डर पे ही. देन देखिए माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, साउथ अमेरिका, इक्वाडोर. वेस्टर्न कोस्ट पे भी दिखेगा आपको इक्वाडोर, अपर पोर्शन ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कोटोपैक्सी. माउंट मेयोन आपको दिखेगा फिलीपींस में, पैसिफिक सी में आ जाइए, फिलीपींस पे जाइए, जापान के नीचे आपको माउंट मेयोन दिखेगा, उसे टिक मार्क लगा लीजिए. माउंट फूजियामा यू विल सी इन जापान, फिलीपींस के ऊपर चले जाइए, जापान आ जाएगा. There are two famous mountains named as Krakatau. First is Krakatau and second is Anark Krakatau, the child of Krakatau. So this can be found in Indonesia. नीचे आ जाइए, इंडोनेशिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा Krakatau दिख जाएगा आपको. माउंट पेले also famous for No Ardante, और काइंड ऑफ लाइट हाउस ऑफ ग्लोइंग स्काई, ऐसा कुछ है नाम, मैंने हम आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था. कैरेबियन आइलैंड्स में आ जाइए, नॉर्थ अमेरिका के लोअर पोर्शन में आपको माउंट पेले दिख जाएगा. देन वी हैव टू आइलैंड्स, वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडिया. क्या क्या है? नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड. देखिए अंडमान एंड निकोबार के ग्राफ में आ जाइए, एटलस में. नारकोंडम आपको नॉर्थ अंडमान के साइड में मिल जाएगा, मिडल अंडमान के साइड में आपको बैरन आइलैंड मिल जाएगा. नारकोंडम इज एन एक्सटेंट वॉल्केनो. ठीक है. सो वॉल्केनोज कैन हैव टू टाइप्स, द एक्टिव वॉल्केनोज एंड एक्सटेंट वॉल्केनोज. एक्सटेंट वॉल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड इन आवर प्रीवियस टाइम्स. जहाँ तक ह्यूमंस को याद है तब से वो इरप्ट नहीं हुए हैं, तो हम उनको एक्सटिंक्ट श्रेणी में डाल देते हैं. And the second is active volcanoes which have been erupted in recent times. So Narcondam is an extinct volcano, Barren Island is an active volcano of India. So ये दो ही हैं हमारे पास. नारकोंडम कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ जो बोल रहा हूँ. नॉर्थ अंडमान के साइड में वी विल स्टडी द ग्राफ ऑफ और द मैप ऑफ अंडमान. इधर आपको मिलेगा कोको चैनल, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान,
नारकोंडम, बैरन आइलैंड, नॉर्थ में सैडल पीक है हमारे पास, बैरन मिडल अंडमान में, मिडल अंडमान के साइड में, साउथ अंडमान यहाँ आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर राजधानी, देन लिटिल अंडमान, देन द फेमस 10 डिग्री चैनल segregating the अंडमान ग्रुप विद द निकोबार ग्रुप, देन कार निकोबार मिलेगा आपको, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार. So this is whole map of अंडमान एंड निकोबार. तो आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन दैट नारकोंडम एक्सटेंट आइलैंड या वोल्केनो सिचुएटेड बिसाइड्स साउथ अंडमान, फिर गलत हो जाएगा. और लिख लीजिए द 3 फेमस इंपॉर्टेंट वोल्केनोज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डेट इज माउंट रेनियर, माउंट शास्ता एंड माउंट हुड. सारे ही आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिलेंगे. मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज लाइन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वही देख रहे हैं हम. देन आई हैव टोल्ड यू माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया. कैसे फॉर्म हुआ है, ये तो है नहीं उधर, बताएंगे कैसे फॉर्म हुआ है. देयर इज अनदर काइंड ऑफ प्रोसेस फ्रॉम विच वोल्केनोज एज वेल एज प्लाटूज कैन बी फॉर्म्ड. और उसी का प्राइम एग्जांपल क्या है, डेक्कन प्लाटू हमारा. कैसे फॉर्म हुआ है, ये जितना भी हमने पढ़ा उससे फॉर्म हुआ है? नहीं. कैसे फॉर्म हुआ है पूछेंगे. रीयूनियन हॉटस्पॉट पढ़ा था. सो अगला ही टॉपिक है हॉटस्पॉट एंड स्प्रिंग्स. ठीक है, हॉटस्पॉट, स्प्रिंग्स एंड गीजर अगला टॉपिक है, तो उसमें देखते हैं. और इटली के तो मैंने आपको बता रखे हैं, स्ट्रोम्बोली, इटना, वेसुवियस और वोल्केनो. ठीक है, एसेंडर स्ट्रेटोवोल्केनो कौन पैसेट. नाउ वी विल स्टडी द प्लाटूज. फेमस है, अगर आपको खुद देखना तो देख लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा वर्ल्ड मैप, उसमें दिखा देंगे. नॉर्थ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पैसेज, तो वो भी देख लेना एक बार, अपने एटलस में देखना एक बार पहले. इसी के बीच में है ना, क्या पता गलती से गलत निकल जाए. साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में. अनदर टाइप कैन बी फॉर्म्ड हेयर. 3i कर दीजिए, इसके अंदर नहीं है, अलग ही है, उससे अलग है. क्रेटर, अगर इसके आगे लेक लगा दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, फिर आपको याद हो जाएगी चीज़ें. इन दिस प्रोसेस, इन द फॉर्मेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ स्ट्रेटोवोल्केनो, सपोज the magma will come which is acidic in nature and it will create a huge explosion at the top of this vent. So what will happen, this volcano will remain only this, because the whole of this particular pyroclastic material as well as the formation material of this stratovolcano will get exploded. So that's why a depression will remain upon this volcano, and due to the season and due to the heavy downpour, it means rain, this depression can be filled up with water, and as this depression is filled up with water, this is known as crater lake. ठीक है, और आपने एक और क्रेटर लेक भी पढ़ा होगा, कैसा, जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, that has been formed due to the impact of a asteroid on earth. लोनार लेक जो रिसेंटली उसका वाटर पिंक या कुछ टर्न हो गया था ना, वो भी देख लेना. लोनार लेक इन महाराष्ट्र. एंड दिस पर्टिकुलर क्रेटर वोल्केनो, क्रेटर लेक जो उसमें लेक बन जाता है उसको बोलते हैं, बट क्रेटर वोल्केनो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है. सो दिस पर्टिकुलर वोल्केनो यू कैन सी एंड विजिट इन द Narnaul district, Dhosi Hills. I have been to this Dhosi Hill, but as I have studied these particular things, my cousin told me that we will visit this Dhosi Hills, and I remember that somewhere I have heard this term.
So when I asked my cousin about the characteristics or about the age of this Dose Hills, so he told me that there is a very big, what should I say, inclination of this mountain. बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है. It involves various steps to reach at the top. But the temple is not at the top, but we have to descend first, approx half of the mountain, and then there is a plain of fertile land, zameen, and here you will find the mountain of the Chavan Rishi, that is the founder of the Chyawanprash. So that particular taste of Chyawanprash, it is originated from Chavan Rishi, and Chavan Rishi is in the past resides in this Dose Hill. So ये जो हमने चढ़ाई की है ना, तो यहाँ और ये वापस, so this is the whole of the crater volcano. अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा. प्लीज़ गो एंड गूगल दिस पर्टिकुलर डोसी हिल्स. ठीक है, द ओरिजिन ऑफ च्यवनप्राश. So first you have to ascend these steps and then you have to descend these steps, and then you will find the temple over there. And of course as it is volcanic in origin, so it is very fertile. ठीक है. हो ही गई है बस आज की क्लास ना. बस थोड़ा सा प्लाटूस बचा है एंड हॉट स्प्रिंग एंड गीज़र बचा है. पूरा डायग्राम नहीं बनाता हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाता है. या तो प्लाटूस आप लिख लीजिए, अगली क्लास में अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाऊँगा तो उधर ही लिख लेंगे. कोलंबियन स्नेक प्लेटू, एक हमारे पास यहाँ कॉन्टिनेंट है, एक यहाँ है. बनाने को बना दूँ पर टाइम लग जाएगा अभी. हमारा इंडिया, here we have ऑस्ट्रेलिया. सो कोलंबियन स्नेक प्लेटू इन द नॉर्थ पोर्शन ऑफ अमेरिका, यूएसए. देख लीजिए, अपना एटलस मैप निकाल के देखिए. देन वी हैव ड्रैकन्सबर्ग प्लेटू इन द साउथ अफ्रीका. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका में चले जाइए, ड्रैकन्सबर्ग प्लेटू मिल जाएगा आपको. देन आवर फेमस डेक्कन लावा प्लेटू तो है ही है. वी विल फाइंड पैटागोनियन प्लेटू. कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, चिली के पास, द लोअर चिली पोर्शन, नॉट चिली, अर्जेंटीना में आपको पैटागोनियन प्लेटू मिलेगा. ठीक है, लोअर अर्जेंटीना में, इन द नॉर्थ अमेरिका. पैटागोनियन मिल गया, डेक्कन लावा प्लेटू मिल गया आपको, ड्रैकन्सबर्ग मिल गया, साइबेरियन प्लेटू इन द मिडल पोर्शन, मिडल थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन में आपको रशिया के साइबेरियन प्लेटू मिलेगा. फिजिकल मैप देखना. कोलंबियन स्नेक प्लेटू हो गया, पैटागोनियन हो गया, ड्रैकन्सबर्ग हो गया, साइबेरियन हो गया, डेक्कन लावा हो गया, एंड लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया में किम्बरली प्लेटू. ये सब देख लीजिए. सो दीज ऑल हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वल्केनिज्म. मिल गए आपको सारे, देख लेना. मज़ा आता है वर्ल्ड मैप बनाने में, पर टाइम लग जाता है थोड़ा ना. अगली क्लास में बना के दिखाऊंगा. The next portion is hot spring and geysers. So hot springs are very common. These are hot water bath, natural hot water bath. So क्या होता है, जो मैग्मा होता है, अंडरग्राउंड मैग्मा, it want to come out at the crust, but the water that has been collected over the magma, it stops the magma by solidifying it in the lower part of the earth,
but the transfer of heat is taking place. So that's why this particular water which is sitting above the magma tends to heat up and thus forming a hot water bath. So it is very famous and it has been spread all across the earth. ठीक है. But the second thing, the geysers can be found only in New Zealand, USA एंड ग्रीनलैंड. तो यहीं हमको आइसलैंड. तो यहीं 3 हमको गीजर्स मिल सकते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गीजर एंड द हॉट स्प्रिंग? हॉट स्प्रिंग इज द जनरल वाटर, हॉट वाटर at the crust, but geyser with pressure, the water from the interior of the earth will come out as a shower. ठीक है, और a spring. जो फवारे होते हैं ना गांव में चलते देखते वैसे आएगा. तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, किधर है? यूएसए में. ओल्ड फेथफुल गीजर है वहाँ. तो फिर शायद से ओल्ड फेथफुल ही नाम है उसका. एवरी 43 minutes it will come out. So that is famous geyser. So USA, Iceland and New Zealand we will find geysers, and hot springs are very common in whole of the universe. आज ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं हो गई? What is this? This is fumaroles. FUMAROLES. What is this? इन दोनों में से कौन कौन से लिख लीजिए. मैंने क्या बताया था? गीजर कम्स आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ विद प्रेशर. तो आप देख लीजिए कौन सा है. सो इस क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं. बहुत सारी चीज़ें कवर की, पिछले वाली चीज़ भी रिवाइज कर दी है. अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वॉल्केनिज्म हैज़ बिन लेफ्ट आउट, बट बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तब. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फर्स्ट स्टडी द वॉल्केनोज किधर है, जो हमने पिछले क्लास में भी किया था. अर्थक्वेक से थोड़ा सिमिलर है. सो द लोकेशंस ऑफ द प्रोमिनेंट वॉल्केनोज, आज जैसी नहीं, द ओवरऑल रीजन्स. ठीक है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल वी विल अटेम्प्ट 1 to 2 मेन्स क्वेश्चन इन द क्लास ओनली. ठीक है. सो टिल देन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.